افطار پارٹی ہے ہمارے یہاں پر سوسائٹی کے اندر، اور شاہزیب بھائی نے ہم سب نے مل کر بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، جس میں ہمارے ایم پی ہے، ایم این اے اور سوسائٹی کے سیکریٹری نسیم صاحب وغیرہ بھی سب موجود ہیں۔ باقی اس بلاگ کو آپ پورا دیکھیں، حنظلہ بھائی آپ کو باقی چیزیں بتاتے جائیں گے، دیکھیے۔ جی السلام علیکم۔ امید ہے کہ علی گڑھ ریزیڈنس سوسائٹی کے ممبران کی جانب سے منعقد ہونے والا یہ جو افطار ہے اور ڈنر ہے، یہ اس لیے کامیابی حاصل کرے گا کیونکہ اس میں اکثریت نے شرکت کی ہے اور متعلقہ ایم پی ایس اور ایم این ایس کو بھی یہاں بلایا ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ سوسائٹی کی انہانسمنٹ کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ حکومت سے جو مدد درکار ہوگی وہ ہم ان لوگوں سے حاصل کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید ہم اس میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آصف مسعود۔ اچھا، ہم لوگ جو ہے ابھی کچھ مہمانوں کا ویٹ کر رہے ہیں، مگر جو مستقل آ چکے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو مہمان خصوصی ہیں وہ ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں اور نسیم اپنا صاحب ہیں، باقی آپ کو دکھاتے جائیں گے، آپ چلتے جائیے۔ مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان ni mwezi mmoja uliosakirwa na miezi yose mulizokoma Ramadan tieni tiulandile Ramadan, 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 مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان۔ سین ایسا ہے کہ ابھی ہم لوگ آئے ہوئے افطاری پہ نا، دعوت ہے 5A میں، 5B میں ہم لوگ رہتے ہیں، 5A بالکل اس کے سامنے ہے نا۔ تو ابھی فی الحال ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے، ابھی سب نے افطاری کر لی ہے، ابھی آگے کا منظر بتائیں گے آپ کو کیونکہ یہاں پر سب آئے ہوئے، تو ابھی فی الحال آگے کا منظر آپ کو بتاتے ہیں، پھر آپ کو ایک ایک کر کے سب سے پوچھتے ہیں، ہمارے علی گڑھ پہلے ایکسٹرا والے سے پوچھتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں، ابھی فوراً دوسرے لوگوں پہ نہیں جائیں گے کیونکہ سب ابھی بزی ہے کھانے پہ، تو انشاءاللہ ابھی سب سے بات کرتے ہیں۔ پہلے اپنے علی گڑھ جو ہمارے ایکسٹرا والے جو ہماری گروپ کے ہیں ان سے میں بات کر لیتا ہوں۔ زبان کیا ہے یہاں پر، کیا سین ہے؟ آج ہم لوگوں نے یہاں پہ افطار پارٹی آرگنائز کری ہے، اور یہاں پہ ہم نے مصطفیٰ کمال، فاروق ستار صاحب، ایم این اے یہاں کے، ہمارے ایسوسیشن یہاں کے بڑے تقریب ہمارے بڑے ہیں یہاں کے، ہم سب کو افطار پہ دعوت ملایا اور جن کی تشریح بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ عبدالرحمٰن، یہ جو اتنے سارے لوگ آئے ہوئے تو اس میں سے یہ سب ہمارے علی گڑھ والے یا پھر یہ علی گڑھ والے بھی ہیں، باقی کچھ ایم پی ایز ایم این اے ہیں ہمارے، باقی یہاں کا جنرل سیکریٹری نسیم صاحب بھی ہیں، اور فاروق ستار صاحب کی بھی توقع ہے کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ، ان کا ویٹ ہو رہا ہے پھر میں، اور ابھی روزہ کھولا، نماز کی تیاری ہے، اور زیور وڑیا صاحب بھی آ چکے ہیں، ولی انکل انشاءاللہ نماز پڑھائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہیں، آپ کو دکھانا چاہیں گے ہم، دکھاؤ بھائی کو۔ یہ بھائی ہیں، یہ وہ آل کراچی 210 کو 109 پل۔ ابھی سبحان تو نے کیا 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 ہے یہاں پر، کون سے تیر مارے؟ میں نے ایک سموسہ کھایا، دوسرا ملا نہیں بس، اور بھائی کچھ ایک سموسے پہ توقع کیا ہے، آپ یقین کریں دوسرے پہ ہاتھ مارتے اس سے پہلے کسی اور نے نماز پڑھا دی۔ چلو نماز پڑھیں گے، آپ کو دکھاتے ہیں نماز میں یہاں پر کیا سین ہے کیا نہیں ہے نا۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض
أمرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. یہ ابھی بریانی کا ٹائم ہونے والا ہے تو یہاں پر ساری چیزیں اٹھ رہی ہیں. ماشاءاللہ سے بھائی حمزہ کے سب کام کرا رہے ہیں. باقی انزلہ کے یہ سوت رہا تھا اینڈ میں اٹھ کے آیا ہے منوس آدمی اور اب کام بھی نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں صرف ویڈیو بنا رہا ہے یہ. بھائی میں تو اسی لیے آئی ہوں نا. ویڈیو کے اینڈ میں بھی آپ دیکھیے گا سر یہ ویڈیو بناتا ہوا ملے گا آپ کو اور کچھ بھی نہیں. مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان لمزي وموتي ولي وسنكيبا أم يسير سير مولي زكوما Ramadan tieni tiulandile. اچھا بریانی جو ہے ہماری یہاں پر فریش ٹیسٹی سے بنی ہوئی اور بہترین بریانی کا ٹیسٹ ہے. میں نے ایک آدھ مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان لمزي وموتي ولي وسنكيبا أم يسير سير مولي زكوما. آپ کہاں تھے پہلے تو یہ بتاؤ. میں شاپنگ کے لیے گیا ہوا تھا. کہاں؟ ابے تو سارے دن شاپنگ کرتے رہتا ہے یار, تیرا کوئی اور کام ہی نہیں ہے یار. بس یار تھوڑا سا عید آ رہی ہے نا اس وجہ سے تو باقی کا کیا ہے. ہمارے دوست عزیز قاری زبیر وہ ماشاء اللہ کھانے میں بیٹھ گئے آنٹی کے ساتھ ہی. اور یہ ہمارے آنے کے بعد بہترین مہمان ہیں ہمارے سفر کے پورے علی گڑھ کی سوسائٹی کے جان زبیر. نہیں ہمارا سب سے مین ایکٹیو بندہ ہے بھائی. تو بھی بہت لیٹ ہو گیا یار, تو سموسے تو نے مس کر دیے کل رات والے. ہاں نہیں آج سموسے میں کل رات میں تو محنت ہوئی تھی. ہاں پروموشن ہو رہی ہے اور گورنمنٹ سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایم پی اے ایم این اے کی دعوت دی گئی تھی اور بھی پولیٹیکل فگرس کو دعوت دی گئی تھی لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں آ سکے. لیکن جو لوگ آئے ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ آ گئے. یہاں شاہزیب کی کاوش ہیں, آصف بھائی کا شکریہ, انہوں نے اپنے گھر کا استعمال کرنے کی اجازت دی. آپ لوگوں کا شکریہ کہ اس پورے انتظام کو چلایا اور سارا بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. ایک افطار ہے, سب ساتھ مل کے بیٹھ گئے, بس یہی ہے. جزاک اللہ بھائی. رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان لمزي وموتي ولي وسنكيبا أم يسير سير مولي زك. مہربان جو رحیم اور رحم کرنے والا ہے, آج علی گڑھ سوسائٹی سیکٹر 5B اور 5A کے ریزیڈنٹ کی جانب سے اور سوسائٹی کی مینجمنٹ کی جانب سے یہ افطار ڈنر منعقد کیا گیا ہے, جس میں حلقہ MPA PS 97 ایڈوکیٹ رانا شوکت صاحب, MIT کے سربراہ اور بانی ڈاکٹر سلیم حیدر اور دیگر ان کے رفقا, علی گڑھ سوسائٹی کی مینجمنٹ سیکریٹری نسیم صاحب, فائننس سیکریٹری انیس بھائی اور پریزیڈنٹ خاور صاحب اور تمام علی گڑھ کے ریزیڈنٹ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ علی گڑھ سوسائٹی کا تھوڑا سا میں یہ بتاتا چلوں کہ علی گڑھ سوسائٹی
बेसिकली जाकिर अली खान साहब मरहूम जो सर सैयद यूनिवर्सिटी के बानियों में से थे, और जिले अहमद निज़ामी साहब मरहूम वो भी सर सैयद यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, और उनके रफुका ने सोसाइटी की ज़मीन एलोकेट कराई जिसमें हम लोग यहाँ पर आज इफ्तार कर रहे हैं। और बहुत से रफुका हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके आबा अजदाद उस कमेटी का हिस्सा थे, जैसे इक़्तिदार भाई हैं और दीगर लोग हैं। तो मेरे भाइयों, अब मैं अपनी बात का आगाज़ करने से पहले, दावत खिताब देने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि वजूद हक़ से ये सारा निज़ाम कायम है, किसी के फ़हम से ये सारी कायनात कायम है, और वो लोग होंगे अफ़ाम व फ़हम व मिल्लत, उसके बावजूद हमारे सर पे हमारा इमाम कायम है। तो मैं मुल्तमिस हूँ अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर सलीम हैदर भाई का। लंबी मुसाफतें हैं लेकिन थके नहीं हम, एक बार चल दिए रुके नहीं हम, और सब लोग बिक रहे थे हम भी वहीं खड़े थे, मुंह मांगे दाम मिलते लेकिन बिके नहीं हम, और जिनका वतन नहीं था उनको बसा दिया है, और अपने नसीब ऐसे कि अब तक बसे नहीं हम, और मेरी शराफतों को, यानी मिन जुमला कौम की, मेरी शराफतों को मेरा मिजाज जानो, कमज़ोर मत समझना अब तक उठे नहीं हम। क्या बात है। मैं कि क़तन इस ख्याल से यहाँ पर जब मुझे भाई इन्होंने आसिफ ने दावत दी तो मेरा बिल्कुल मतलब ये नहीं था अंदाज़ा कि यहाँ किस किस्म की जो है नशिस्त होगी। तो मैंने इनसे पूछा भी, मैं सबसे पहले माजरत कि मैं देर से पहुँचा क्योंकि मैं पहली दफ़ा इस इलाके में आया था और मैं रास्ता भटक गया। तो जब वो मुड़ के उसने दिया हमें रास्ता, वो अफ़गान बस्ती में निकल गया, बहुत दूर तक वो कचरा चुन के वो, फिर उसने कहा लेफ़्ट मुड़ जाओ, वो फिर दोबारा, तो फिर मेरे साथ उन्होंने कहा कि साहब ये तो वापस हम कराची की तरफ जा रहे हैं। फिर हमने फ़ोन किया, वो लासी गोट और जैसे कौन कौन से गोट आ गए। मैंने कहा यार ये अलीगढ़ सोसाइटी यहाँ तो नहीं हो सकती। मैं बार बार यही चीख रहा था, मैंने कहा ये अलीगढ़ सोसाइटी, आसिफ ने मुझे रास्ता बताया, ऐसे रोड पे तो नहीं हो सकती। तो जिस तरह की, लेकिन फिर बहरहाल किसी तरह से डायरेक्शन मिली तो फिर मुझे इस रास्ते का अंदाज़ा हुआ। फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि जैसे मैं अभी शौकत से बात कर रहा था कि अलीगढ़ तो इस्तारा है तहज़ीब का, तमद्दुन का, कल्चर का, तालीम का, रिवायात का, और जितना भी बोलता रहूँ बहुत अल्फाज हैं इसके लिए। तो मुझे अब यहाँ आके ये भी पता चला कि ये सोसाइटी भी के लिए जिन दो बानियान का जिक्र किया, और इत्तेफाक की बात है मेरी दोनों के निज़ामी साहब के बेटे फ़र्रुख निज़ामी इंजीनियर और इनके बेटे अकबर जाकिर के, तो दोनों के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ है। और अब की दफ़ा जब वो अलीगढ़ सर सैयद यूनिवर्सिटी का के इंतखाबात का मरहला आया, मैं यही बात कर रहा हूँ, आम कोई सियासी बात नहीं इसमें, कि तो फ़र्रुख भाई भी हमारे घर तशरीफ़ लाए और हमने एक तकरीब रखी, वो दोस्तों को बुलाया था वहाँ पे, तो उनका ख्याल था उसमें। और पिछले 1.5-2 साल से, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा, जो अकबर भाई जो हैं, जो जाकिर अली ख़ान के बेटे हैं, बल्कि उनकी किताब भी है रिवायात अलीगढ़, जो मुझे जो है वो, तो अकबर भाई उनकी वाइफ भाभी, ये तो वो जब से ये एक वो चल रही थी, मसला चल रहा था कोर्टों में और इसमें उसमें, तो उसमें मुझे उनके साथ वो रहता था तबादला ख्याल। बहरहाल किसी तरीके से इंतखाबात हुए और उसके नतीजे में, जबकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, हमारे जाकिर अली ख़ान साहब के बेटे वो बेचारे बाहर थे, उन्हें आउट किया हुआ था इस पूरे सिस्टम से, लेकिन वो देखिए कि वो उन्होंने इलेक्शन जीत लिया उनके पैनल ने, और वो चांसलर बन गए अब सर सैयद यूनिवर्सिटी के।
اور وہ دوسرا پینل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا. تو بہرحال اس کی بھی مجھے پتہ لگا کہ مجھے نام سے کچھ تھوڑا اندازہ تو ہو رہا تھا کہ بھئی وہ ہے, لیکن اچھی خوشی ہوئی ہے. اور واقعی ان کراچی کے یہ لوگ معمار اور یہ لوگ چاہتے تھے اس قسم کی سوسائٹیز, یہ بڑا میرے خیال ہے اس سے زیادہ معتبر کوئی نام ہو نہیں سکتا جس کو آپ لوگوں کو سعادت ہے کہ آپ اس نام کے سائے سوسائٹی میں آباد ہیں اور رہتے ہیں. اس لیے کہ جب بہت ساری گفتگو ہوتی ہے جہاں اگر ہم ایسی غیر سیاسی اور سماجی, تو میں اکثر کہتا ہوں, بلکہ چونکہ یہ اس سے مناسبت رکھتی ہے, بلکہ میری جو کتاب ہے جس پہ پابندی اسی سال لگ گئی تھی, اسی مہینے لگ گئی تھی, آج تک پابندی ہے, تو اس کتاب میں میں نے ذکر کیا ہے اس بات کا کہ علی گڑھ کا بھی, میں شاکر سے بھی کہہ رہا تھا کہ علی گڑھ کی تو تاریخ یہ ہے کہ لکھتے یہ ہیں کہ علی گڑھ میں گھومنے والے سڑکوں پہ آوارہ کتے بھی جو تھے وہ تہذیب یافتہ ہوتے تھے. یہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے. تو میں اب یہ بہرحال اس کی نسبت سے یہ علی گڑھ کالونی ہے, تو میں یہ امید کروں گا, میری دعا ہوگی کہ یہاں رہنے والے جو ہے وہ اس کا ایک سچا نمونہ. اگر پھر علی گڑھ یونیورسٹی کا, اور کبھی کبھی ہم دوستوں میں بیٹھتے تھے تو ہم ایک سوال کریٹ کرتے تھے کہ یار وہ کون سی مسجد ہے, وہ کون سی, جہاں پر لوگ جواب نہیں دے پاتے تھے, پھر ہمیں بتانا پڑتا تھا کہ جس مسجد میں شیعہ اور سنی ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس برصغیر کے اندر. ویسے تو اور دوسرے مذہبی مقامات جہاں ہیں, تو وہ مسجد جو تھی وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر کی مسجد تھی, جہاں جیسے اگر سنی پہلے گئے تو ان کے امام نے نماز پڑھائی, اور اس کے بعد جو شیعہ حضرات اگر جس کا ٹائم ہے وہ اندر گئے, اسی وہ ایک ہی مسجد میں کوئی فرقے کا اس کا کوئی معاملہ نہیں تھا. اور یہی اسلام کی اصل جو ہے وہ ہمارا سبق ہے, ہمارے دین کا, رواداری کا. تو علی گڑھ یونیورسٹی وہ ادارہ تھا ایک کہ جہاں سے تہذیب لوگ سیکھتے تھے, جہاں سے لوگ وہ سیکھتے تھے. تو خدا کرے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے زندگیوں میں داخل ہو, اور ہم ہر قسم کے تعصبات سے بالاتر ہو کے, ہر قسم کی نفرتوں, خاص طور سے بہت ساری ہوتی ہے, لیکن اسی طرح مذہبی جو نفرت ہوتی ہے, منافرت, یہ بہت ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے. مذہب, فرقہ, یہ جذباتی سوالات ہوتے ہیں, جذباتی معاملات ہوتے ہیں. تو بلکہ ہم تو اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جو آج بھی ہوا, اور حالانکہ عذرا تفنن بات کر رہا ہوں کہ روزی کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے, تو رمضانوں کے اندر خاص طور سے اگر کہیں ہمیں افطار میں پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے, اور ظاہر ہے دیر بھی انسان کو ہوتی ہے تو 5-10 منٹ کی ہوتی ہے, کبھی کوئی رش ہو گیا, یہ ہو گیا, تو ہم سب سے پہلے گھس کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اہل تشیع حضرات کے لیے کہاں رکھا ہوا ہے افطار. تو اس لیے کہ تاکہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ جو ہم سے غلطی یا کم وہ رہ گئی ہے کمی, تو ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے بچوں کے اندر اس اسپرٹ کو ہم نے منتقل کرنا ہے, اس روایات کو. اب باقی جہاں تک معاملات ہماری سوسائٹی کے ہیں, اور جو ہیں وہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور بلکہ میں ابھی ان سے کہہ بھی رہا تھا, میں نے کہا یہ آصف مجھے پچھلے جب سے یہاں آئے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ایک گھر تک کبھی آئیں, اور اتفاق کی بات ہے کہ میں نہیں آ سکا, اور آج جو میری قسمت. تو میں ان کے اس دالان کو اس کو دیکھ کے مجھے یاد آیا, یہ بہن سے ان سے کہا کہ یہاں تو چھوٹا موٹا جلسہ ہو سکتا ہے. تو آج وہی بات ہو رہی ہے. حیدرآباد میں جو ہمارا گھر تھا, تو وہ حیدرآباد پکے قلعے میں ہم رہتے تھے, وہیں ہماری پیدائش ہوئی, وہاں تک ہم جوانی. اس کا جو صحن تھا وہ غالباً اتنا تھا یا اس سے بھی بڑا تھا. تو اور جو اس کے جو پیچھے کے 2 پورشن کے درمیان کی جو وہ تھی, وہ جگہ اتنی بڑی تھی کہ اس کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم چھوٹے سے کہ 2 پوری ہاکی کی یا دونوں پوری فٹ بال کی ٹیمیں 11 کھلاڑی اس کے اندر کھیلتے تھے گھر کے اس کے اندر. وہ قلعے کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے, پکے قلعے کی, جہاں وہ راجہ مہاراجہ رہتا تھا. تو وہ میں اکثر مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں کہ اس کے اندر جو ہے جب اظہر خان نے اس کے ساتھ خلاف وہ باہر نکلا,
तो सबसे पहला जलसा उसी के अंदर जो मैंने अपने बहुत छोटी उम्र, और फिर पीएनए की मूवमेंट के अंदर खवातीन मर्दों के जलसे पक्के किले के ग्राउंड में होते थे, आज तक होते हैं, लेकिन खवातीन के जलसे हमारे घर के दालान में होते थे, इसलिए कि वो पर्दे वगैरह का जो है वो इंतज़ाम होता था। तो वहाँ मैंने बड़े बड़े लीडरान शाह अहमद नूरानी और गौर साहब उन सब को अपने घर के दालान में बैठे हुए जो है ना ये तकारीर, तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है आपके यहाँ पर आकर, आपने मुझे दावत दी, और इंशाल्लाह मैं आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहे, और हम इंशाल्लाह ताला अगर मैं अपनी किसी कैपेसिटी में आपकी सोसाइटी के लिए या आपके इसके लिए जो भी कभी भी हो, आप मुझे बिल्कुल जो है वो बुला सकते हैं, मैं बिल्कुल आऊँगा। बहुत खुशी हो रही है यहाँ के रेजिडेंट से मिलके, माशाल्लाह सब लोग, तबादला ख्याल की डायलॉग की बहुत अहमियत है, तो हमें एक दूसरे की मदद करने के साथ साथ एक दूसरे तबादला ख्याल का सिलसिला जारी रखना चाहिए। मुझे उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस इलाके की मुझे खुशी हुई है, मुझे ये भी इस गेट में अंदर दाखिल होने तक मुझे नहीं पता था कि मैं जो है वो, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये मेरा भाई, मैं छोटा ही भाई कहूँगा, इनसे मेरी मुलाकात कम से कम 10-15 साल तो हो गए होंगे, नहीं ज़्यादा हो गए। इतने अरसे के बाद आज मुलाकात हुई है, और शौकत से मेरा इतना गहरा ताल्लुक़ है कि शायद किसी मतलब दो भाइयों से, या किस तरह से कहूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरस बीत गए, 15-20 बरस हो गए शायद, मैं तारीख नहीं रखता। तो शौकत हमारा एक कन्वेंशन हुआ था बड़ा, उस कन्वेंशन के अंदर शौकत ने तकरीर की थी सिंधी और उर्दू एक्सेंट को सारा मिला के, और उसमें उन्होंने शहदादपुर के लोगों को रिप्रेजेंट किया था, उनकी फिक्र और उनके जो सोच थी, वो तमाम सिंध के हर इलाके का आदमी वहाँ, मीरपुर का, हैदराबाद का, सब लोग थे, तो वो इनकी वो मुझे याद है। और उसके बाद ये वकील थे और वकील हैं, फिर अब मुझे ये मेरे इल्म में नहीं था कि ये इस इलाके से रुकनी सूबाई असेंबली बन गई, तो मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आकर इनसे मिलकर। ये भी मेरे भाई हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी साहब हैं पता, तो ये भी मेरे भाई हैं, और आप सब भी माशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। मैंने थोड़ा वक्त जो है वो ज़्यादा लिया, क्योंकि बहुत खुशी हुई है कि मैं इतने लोगों से, आप साथियों से मुलाकात करूँ। बहुत शुक्रिया। मैं इसी अशार के साथ कि ऐ मेरे हमनशी चल कहीं अब और चले, ऐ मेरे हमनशी चल कहीं अब और चले, अब इस चमन में अपना गुजारा नहीं। गुलिस्तां को लहू की जब ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। अब मैं मुल्तविस हूँ रुकने सूबाई असेंबली हल्का PS 97 एडवोकेट राना शौकत भाई से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। एडवोकेट राना शौकत भाई, बड़े सारे इलाका वैसे भी नहीं है इतना तहजीब और तमन्ना करना, हरियाणा के लोग हैं सीधी करने वाले, पूरी ज़िंदगी बड़ों की भी लड़ाइयों में गुजर गई, पानी में आपस में लड़ते हुए गुजर गए, फिर माइग्रेशन के बाद में आ गए, पंजाब से लड़ते हुए यहाँ भी सारी ज़िंदगी इन्हीं टेंशनों में गुजर गई। और डॉक्टर साहब से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। मैं कराची में, अगर मैं मेरे बड़े मोहसिन है डॉक्टर साहब, जब मैं कराची में 94 में शिफ्ट हुआ, मेरी आवाज़, अब आपने गलती की है ना, स्पीकर रखना था, वो थोड़ा सा गले का इशू है, तो वो डॉक्टर साहब से रहती थी, सक्कर भी गए कन्वेंशन में। फिर मुझे सबसे पहले सबसे बड़ी सपोर्ट डॉक्टर साहब से ये मिली थी, जो कि बहुत बड़ी उस वक्त मेरे लिए सपोर्ट थी, कि 94 में मुझे घर दिया अपना। ये घर है, ना आपने लाइट का बिल देना है, ना पानी का बिल देना है, ना आपने गैस का बिल देना है, और आपकी कोई जो है यूटिलिटी नहीं कटेगी। वहाँ में रहा काफ़ी असर। तो देखिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए इंसान में जज्बा होना चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे हालात रहे शहर के,
कि हमने एक दूसरे के गले काटने शुरू कर दिए तो हम फिर चुप होकर बैठ गए एक साइड में। डॉक्टर साहब को पता है, फिर अपना घर, वकालत, मेरे सीनियर थे वकार शाह साहब, बड़े दिलेर आदमी थे, फिर उनको शहीद हो गए 2014 में, और यहाँ शिफ्ट हो गए। होते होते हमने करूँगा तो फिर तरावी का टाइप भी सब किसी ने जाना है। अब डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जी अलीगढ़ के आवारा कुत्ते जो है वो भी तहजीब याफ्ता होते थे या होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं अर्ज़ करूँ, हमारे जो है फालतू कुत्ते भी जो है तहजीब याफ्ता नहीं है, आवारा तो कहाँ तहजीब याफ्ता होंगे। अभी असेंबली में मैंने अपनी स्पीच में भी कहा है कि जी हमारे टाउन इंतज़ामिया वाले जो है वो आवारा कुत्तों को नहीं मारते। वो कहते हैं कि जी आज वह भुट्टो साहबा ने मना किया हुआ है। तो मैंने ये कहा जी अगर किसी को कुत्तों से इतना प्यार है तो सारे कुत्तों को पकड़े, वहाँ जो है वो बिलाउल हाउस में ले जाएं, पालें उनको। लेकिन हमें क्यों तकलीफ दे रही है, हमें तकलीफ क्यों दे रही है हुकूमत? अब आ जाए कुछ, आप मेरे से ये भी तवक्का कर रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा बात करूं कि आपके इलाके के हमारे जो मामला चल रहे हैं, सारी चीज़ चल रही है। देखिए साल हमें हो गया पूरा, हमें 1 रुपये का भी ना हमारी कोई स्कीम शामिल की गई। अच्छा, फिर किसी अफसर ने अगर हमारा कहना भी माना तो उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर दी गई कि आपने जो है वो इनके एमपीए का कहने पे क्यों गया। शाहजेब ने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया, वो मैंने गाड़ियाँ भिजवा दी, वो उस अफसर के लिए अजाब बन गया कि आपने वहाँ कैसे गाड़ी भिजवा दी। अरे भी वो इंसान नहीं है, टैक्स आप हमसे लेते हो, तो हमारे पैसों से तुम्हारी केएमसी चल रही है, हमारे पैसों से तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, हमारे पैसों से तुम्हारी फेडरल गवर्नमेंट चल रही है, और हमें जो है वो आप एक वो गटर साफ़ करने वाली की जो है वाटर बोर्ड की गाड़ी भी नहीं, जिसका कि पैसा भी तुम्हारा नहीं है, पैसा भी वाटर बोर्ड को हम दे रहे हैं। बहरहाल ये मसले मसाइल, फिर कुछ हमने शोर शराबे किए, बातें की, कुछ की। बहरहाल अब हमारे 2-3 जो प्रोजेक्ट हैं अभी जो चल रहे हैं, एक ये पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट नहीं है। एक हमारा जो ये अयूब गोट, सुखियो गोट और आगे ममदी गोट के जानिब रोड जो जाएगा, ये जो है ये हमारा जो पीटीआई का एमएनए था, क्या नाम था उनका? नहीं एमएनए सैफुर रहमान साहब, ये उनका फंड है। जो अभी पिछला फंड सब एमएनए का रिलीज़ हुआ है, जो उन्होंने अपने प्रोग्राम दिए हुए थे। नंबर 1 ये जो हमारा जमाली पुल से अयूब गोट तक का रोड, ये फिर ये कुलाड़ा चौक से लोग लेके बंगाली मोड़ तक आईबी सुमरो रोड, ये जो है यूनिवर्सिटी लिंक रोड कहलाता है। ये हमारा जिसको हम जमाली पुल वाला रोड कहते हैं ना, असल में इसका नाम बहुत से लोगों को नहीं पता, ये यूनिवर्सिटी लिंक रोड कहलाता है इसका नाम जो है। ये जो है ना, ये सैफुर रहमान की दी हुई स्कीमें थी, वो तो उसने अपनी एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है वो केडीए का नाम दिया हुआ था, तो वो केडीए के थ्रू टेंडर हुए, ये सारे हुए। बहरहाल ये रोड आपके बनेंगे, इसमें ना पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का एहसान है, ना किसी टाउन का एहसान है। चूँकि हुकूमत में वो है झंडा लेंगे वो खड़े हो जाते हैं, ना सैफुर रहमान कुछ कर सकता है ना हम कुछ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा काफ़ी मामलात जो है वो गड़बड़ होने के बाद असेंबली की लेवल पे बाइकाट, अगला पिछला, तकरीरें नहीं करने देना, ये वो इस हिस्से में हमारी बारी हो गई है स्टार्ट। तो हम लोग जब आगे खाएंगे वहाँ पर पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, हमारी समझ से बाहर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। करोड़ों रुपए की बातें हो रही हैं, हम लोग कभी लाखों नहीं देखे एक साथ। देखेंगे यूट्यूब के जरिए अंदर एमपी और एमएनए कल में हमारे साथ बैठा है। ये इंशाल्लाह आपको खुद अपना मुतारिफ कराएंगे, हम इनसे पूछें कि क्या सर आपको कैसा लगा यहाँ पर एनवायरनमेंट वगैरह? ये मैं एमपीए राना शौकत अली PS 97, ये अलीगढ़ सोसाइटी का ये ब्लॉग और दो सारे ब्लॉग मेरे हल्के में ही आते हैं। देखिए बड़ा खुशी हुई, पिछले साल भी इफ्तार में मैं आया था, दूसरे साथियों के साथ आए थे, अच्छी गैदरिंग थी। इस किस्म की गैदरिंग होनी चाहिए आपस में, ये बहाना होता है इंसान एक दूसरे से मुलाकात करने का, एक दूसरे की तबीयत, एक दूसरे के मसाइल सुनने के और कोशिश करने की कि कोई किसी की मदद एक दूसरे की कर सके। तो ये बड़ा अच्छा इवेंट आप लोगों ने अरेंज किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ामिया का जिसने जो है ये मामला अरेंज करवाए।
डॉक्टर साहब आपको कैसा फील हुआ? बहुत खुशी हुई है यहाँ आकर, बिलखुसूस हमारी अलीगढ़ सोसाइटी की जो इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट और रेजिडेंट्स ने मिलकर एक गैदरिंग की, और जिसमें हमको आपस में मिलकर कुछ यहाँ के मसाइल और कुछ उमूमी मसाइल जो हमारे शहर के और हमारे सूबे के हैं उस पर गुफ्तगू हुई। और हमने दोस्तों से मिलकर ये ईद के मौके पर, रमज़ान के बाद, रमज़ान में भी और उसके बाद भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए। यहाँ MPA साहब भी इलाके के मौजूद थे, उनसे लोगों ने ज़िक्र किया, तो एक बहुत ही सेहतमंद किस्म की एक्टिविटी हुई है और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। अरे भाई आपने सब कुछ इवेंट करवाया है भाई, मुझे इस बात की खुशी है कि जब मेरे वालिदैन अपने बचपन का दौर गुजार रहे थे तो डॉक्टर सलीम हैदर साहब, जब हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, तो तब हमारी जनरेशन के लिए उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया जिसका नाम था माजिद इत्तेहाद तहरीक। और उसके बाद वो परवान चढ़ी, उसके बाद ऐसी परवान चढ़ी कि एक सियासी तंजीम की शक्ल में इख्तियार की, फिर तुलबा तंजीम की शक्ल में इख्तियार की, जिसके MPA जो है ना आज हमारे सामने मौजूद हैं। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सलीम हैदर साहब का और बिलखुसूस आसिफ भाई का जो यहाँ के रिहायशी है, बेसिकली इनके बारे में आसिफ भाई के बारे में इसलिए मैं बोलना चाहूँगा और क्लैप भी करना चाहूँगा कि आसिफ भाई ने अपना घर बिला खौफ व ख़तर उन्होंने अपना घर प्रोवाइड किया कि आप मेरे घर पे इवेंट कराएं, और शौकत भाई को बुलाएं, सलीम हैदर साहब को भी इनवाइट किया। इसी तरह GMK इलेक्ट्रिक भी अभी आ रहे हैं, हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी जितने मेहमान यहाँ पर आए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, बिलखुसूस अलीगढ़ रेजिडेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और जो नहीं है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनको सेहत दे, उनके घर को आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। हम सब के घर को भी आबाद। थैंक यू सर। जा रहे हैं आसिफ भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने घर दिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है बखुदा इस वक्त कि रेजिडेंट्स जो हैं अलीगढ़ सोसाइटी में रहने वाले, उन्होंने एक बहुत ही पीसफुल और बहुत खूबसूरत इवेंट अरेंज किया, और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एक अच्छी ईद मिलन भी करें इंशाल्लाह। भाई इवेंट हमारा पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब निकलने की तैयारी है और अब सब जा रहे हैं। बहुत अच्छा इवेंट है हम लोग का। और पूल में गिर रहा हूँ। अब्बू का भी एक इंटरव्यू ले ला थोड़ा सा। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ अशार? अंकल कुछ तो एक तो बनता है, थोड़ा भी जाने तो देर हो। अंकल ने नमाज़ पढ़ानी है, इस चक्कर में देर हो रही है, और कुछ भी नहीं, तरावी निकल ली है, अंकल ने मना देना है। और एक बंदे को देखो, इसको बेचारे को 2 बार पिक्चर लेने के लिए बोल रहा है, तो एक पिक्चर एक जो चलेगा। नॉट बैड। और 2 दफ़ा बिरयानी खाई है ना? माशाल्लाह, बिरयानी इज़ वेरी टेस्टी। बोलते हैं चाय इज़ वेरी टेस्टी। बिरयानी इज़ वेरी टेस्टी। चलो भाई, चलो, तो अब हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग ख़त्म हुआ। आपको ज़रूर देखिएगा हमारा व्लॉग और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और एंड तक जुड़े रहे आप लोग। लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम लोगों को आगे फॉलो करें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें।